السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد میں بارش سے گرمی کم، شہر کے کئی علاقوں میں ٹریفک جام، سڑکوں پر پانی جمع، شہریوں کو مشکلات، مزید بارشوں کی پیش قیاسی۔ حیدرآباد میں ٹیسلا کی باضابطہ انٹری، ہائی ٹیک سٹی میں پہلا ایکسپیرینس سینٹر قائم، جدید الیکٹرک گاڑیاں متعارف، ڈیلیوری و سروس سینٹر بھی شروع۔ مرکزی حکومت سے حیدرآباد میٹرو ریل کے مرحلے دوم کو منظوری دینے کی اپیل، نیٹ امتحان کے لیے طلباء کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت، ریاستی کابینہ کا اجلاس۔ چیف منسٹر نے گرم گڑا جنگلاتی علاقے میں ون مہوتسو کا کیا افتتاح، کیا خطاب، موسی ریور فرنٹ منصوبہ تیزی سے آگے بڑھے گا، تجاوزات کے خلاف کارروائیاں رہیں گی جاری۔ حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی حکام کی بڑی کارروائی، کئی ریسٹورنٹس و گوداموں پر چھاپے، کاکروچز، باسی خوراک و غیر معیاری صفائی کا انکشاف، بھاری مقدار میں اشیاء ضبط، نوٹس جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد شہر میں جمعرات کی شام ہونے والی بارش اور تیز ہواؤں سے شہریوں کو شدید گرمی سے وقتی راحت ملی، تاہم معمولی بارش بھی شہر کے کئی علاقوں میں ٹریفک نظام درہم برہم کر دیا۔ ایسار نگر روڈ، انڈر برج، سوماجی گوڑا، مائتی ونم جنکشن، گرین لائنز فلائی اوور، بنجارا ہلز اور پنجا گٹا کے اطراف پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق قطب اللہ پور کے آدرش نگر میں سب سے زیادہ 37 ملی میٹر سے زائد، جبکہ فتح نگر میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں کے دوران حیدرآباد اور تلنگانہ کے کچھ مختلف اضلاع میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور مزید بارشوں کی پیش قیاسی کی ہے، جس کے پیش نظر ٹریفک اور پولیس حکام نے عوام کو احتیاط تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں دنیا کی معروف الیکٹرک گاڑی ساز کمپنی ٹیسلا نے اپنا پہلا ایکسپیرینس سینٹر قائم کرتے ہوئے تلنگانہ کی EV مارکیٹ میں باضابطہ قدم رکھ دیا ہے اور اس مرکز میں صارفین کو جدید 2026 ماڈل Y پریمیم ریئل ویل ڈرائیو ماڈل اور YL گاڑیوں کا مشاہدہ کرنے، جدید الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی، سیفٹی فیچرز اور چارجنگ سسٹم سے متعارف معلومات حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے تلنگانہ میں صارفین کی سہولت کے لیے بلارم انڈسٹریل ایریا میں ڈیلیوری اور آفٹر سیلز سروس کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ ٹیسلا کے مطابق ماڈل Y پریمیم ایک مرتبہ چارج ہونے پر 500 کلومیٹر تک، جبکہ ماڈل YL 681 اور کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ 30 جون 2026 سے قبل گاڑی بک کرنے والے صارفین کو مفت وال کنیکٹر بھی فراہم کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق حیدرآباد میں ٹیسلا کی آمد شہر کو ملک کے ابھرتے ہوئے الیکٹرک وہیکل ہب کے طور پر مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ تلنگانہ کابینہ کا ایک اجلاس چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حیدرآباد میٹرو ریل کے مرحلے دوم کی جلد منظوری فراہم کرے۔ کابینہ نے کہا کہ شہر کی بڑھتی ہوئی ٹریفک کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے میٹرو ریل کا دوسرا مرحلہ ضروری ہو گیا ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 21 جون کو نیٹ کا دوبارہ امتحان تحریر کرنے والے طلباء کے لیے ریاست میں RTC بسوں سے مفت سفر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، سیتکا اور دوسروں نے کابینائی اجلاس کا تفصیلی سے میڈیا کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے کسانوں کے لیے ریتو بھروسہ اسکیم کی رقومات کی 30 جون سے اجرائی کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ ریاستی کابینہ کے آئندہ اجلاس اب ڈیجیٹل ہوں گے اور ان میں
कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। काबीना इजलास के लिए उजरा को टैब फराहम किए जाएंगे जिनके जरिए वो दस्तावेजात वगैरह पेश कर पाएंगे। काबीना ने मेट्रो रेल मरहले दुवम के लिए मरकज से मंजूरी हासिल करने में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मरकजी उजरा से ताउन करने की भी अपील की। KNM 7715 ఈ 7 రకాల సన్నాలకు మరి ఈ వానాకాలం పంటలో బోనస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలోని మన రైతులు ఈ ఏడాది దేశంలోనే రికార్డు స్థాయిలో అత్యధిక ధాన్యం పండించారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ సీజన్లో యాసంగిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు 80 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసినము. భారతదేశంలోనే 29 రాష్ట్రాల్లో యాసంగి పంటలో ఇంత ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా జరగని విషయం కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. మరి మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం మనం రాష్ట్రం నుంచి తక్కువ పర్సెంటేజ్ ధాన్యాన్ని సేకరించడంపై మంత్రుల సమావేశం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్రంలో పండించిన మొత్తం ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కేంద్రానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. కేంద్రం నిర్ణయించిన విధి విధానాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోనూ పంట ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా పంట ఉత్పత్తుల కొనుగోలుకి కేంద్రం నిర్దేశించిన కోటాను అనుసరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇకపై కేంద్రం ఏ పంట ఉత్పత్తులకు ఎంఎస్పీ నిర్ణయించి కొనుగోలు చేస్తుందో ఆ పంటలను అంతే కోటాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వానాకాలం సీజన్ కు రాష్ట్రానికి కేటాయించిన ఎరువుల కోటాను వెంటనే విడుదల చేయాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా ఎరువుల కోటాను విడుదల చేయాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు కేంద్రానికి మా గౌరవ మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు అనేక మార్లు లేఖలు రాశారు. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर हल्के के गुर्रमगोड़ा एको पार्क में शजरकारी मुहिम वन महोत्सवम 2026 का इफ्तिताह करते हुए रियासत भर में 35.50 करोड़ रुपए मालियत के माहौलियाती और जंगलाती तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत गुर्रमगोड़ा रिजर्वायर फॉरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पुरअज़्म है और यहाँ बैनुल-अक़वामी मियार का इको पार्क कायम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसी रिवर फ्रंट और भारत फ्यूचर सिटी जैसे अज़ीमुशान मंसूबे हर हाल में मुकम्मल किए जाएंगे ताकि हैदराबाद को आलूदगी और सैलाब जैसे मसाइल से महफूज रखा जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि गंडीपेट से गोरीली तक 55 किलोमीटर तवील मूसी रिवर फ्रंट को आलमी मियार पर तरक्की दी जाएगी जो कि दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करेगा। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि माजी में बाज़ इलाकों को तरक्की से महरूम रखा गया था, तहम मौजूदा हुकूमत रंगारेड्डी समेत मुख्तलिफ अजला में अर्बन पार्क्स, इको पार्क्स, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, चिड़ियाघरों की जदीदकारी और माहौलियाती बुनियादी ढांचों की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाइयों का भी दिफा किया और कहा कि अवाम को सैलाब और दीगर मसाइल से बचाने के लिए पार्क्स, नालों और झीलों को तजाविज़ात से पाक रखना नागुज़ीर है। మూసీ నది ప్రక్షాళన చేసి తీరుతాము. గండిపేట నుంచి గౌరెల్లి వరకు 55 కిలోమీటర్లు నీ సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్, నీ యమునా రివర్ ఫ్రంట్, నీ గంగా నది రివర్ ఫ్రంట్ కంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్ చేసే బాధ్యత నాది. ఈ వేదిక మీద ఉన్న నా సహచర మంత్రులదని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ఎవడైనా సరే చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు ఆక్రమిస్తే తోడుకలు తీసి ఈపులకు సున్నం పెట్టే బాధ్యత కూడా
మా హైడ్రా మేము తీసుకుంటామని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ వద్దు, మీకు మొత్తం కాలుష్యం ఉండే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలు కట్టుండి సిరీస్ లాంటి ఫ్యాక్టరీలేనంట 1000 ఫ్యాక్టరీలు తెచ్చాడు కడతాడంట. ఒక ఆయన తాటి సెట్ చెప్తున్నాడు. అక్కడ ఫార్మా కంపెనీలే ఉండాలి, మేము వచ్చినాక ఫ్యూచర్ సిటీ రద్దు చేస్తున్నామని. మీ ఫ్యూచర్ని ఎప్పుడో ప్రజలు రద్దు చేసిర్రా నాయన. ఒక ఆయన ఫామ్ హౌస్ పోయిన ఇంకొక ఆయన సెట్లంబడి తిరుగుతున్నాడు. ఫ్యూచర్ లేనోడల్లా ఫ్యూచర్ సిటీ రద్దు చేస్తా అంటున్నాడు. నువ్వు మళ్ళీ వచ్చేసారి సిద్దిపేట గెలితే కదా ఇవన్నీ మాటలు ముచ్చట్లు. तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह की कविता रामागुंडम जिले में अपने दौरे और सरगर्मियों को जारी रखते हुए हैं। कविता ने आज रामागुंडम इलाके में एडरी अलामाइन 3 का दौरा किया। उन्होंने वहां कानकनी खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों और मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत भी की। यहाँ लंगवाल प्रोजेक्ट में कानकनी करने वाले मजदूरों के कई मसाइल दरपेश होने का दावा किया है। कविता ने यहाँ बरसरे कार मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए तफसीली तौर पर इनको दरपेश मुश्किलात और मसाइल का जायजा लिया। मुलाजिमीन ने तवील दीवारी टेक्नोलॉजी के जरिए कानकनी अंजाम देने में पेश आने वाली मुश्किलात से कविता को वाकिफ करवाया। इनके मसाइल की सुकून के साथ समाअत की और इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगी और इनके मसाइल की यकसुई के लिए आवाज़ उठाएंगी। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट को खानगी शोबे के हवाले करने की कोशिश के खिलाफ मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जानिब से सयाह बैचेस लगाकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि खानगी शोबे के हवाले करने के इक़दामात को रोका जाए। एहतजाजी इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि एशियन हैंडलिंग और कूल हैंडलिंग को खानगी शोबे के हवाले करने जो टेंडर्स जारी किए गए हैं उन्हें फौरी मनसूख किया जाए। एहतजाजी मुलाजिमीन और इंजीनियर्स ने खबरदार किया कि अगर खानगी शोबे के हवाले करने की कोशिश रोकी नहीं गई तो एहतजाज को मजीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि आज यदाद्री से शुरू होकर कल तमाम पावर प्लांट्स को खानगी शोबे के हवाले किया जा सकता है। मुजाहिरीन ने कहा कि ये बिजली की पैदावार और सप्लाई को खानगी शोबे के हवाले करने की सिमत हुकूमत ने पहला कदम बढ़ा दिया है और इसे फौरी रोका जाना चाहिए। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया कमेटियों के साथ एक इजलास मुनाक़द किया गया ताकि तलबा की मुंतकिली को महफूज बनाया जा सके। DCP ट्रैफिक मिस्टर अविनाश कुमार के अलावा तकरीबन 3000 स्कूल्स के नुमाइंदे बशमुल स्कूल मालिकीन, प्रिंसिपल्स और इंतजामिया के हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में तलबा व तालिबात की स्कूल बसों, ऑटो रिक्शाओं और दीगर गाड़ियों से बाहिफाजत मुंतकिली के इक़दामात का जायजा लिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि तलबा व तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। पुलिस अहदेदारों ने एक मरबूत हिकमत अमली बनाने के लिए स्कूल हुक्काम से तजावीज़ और इनकी राय भी हासिल की। पुलिस ने वाज़े किया कि तालीमी साल के दौरान तलबा की हिफाजत और इनकी स्कूल्स और तालीमी इदारों को बाहिफाजत आमद व रफ्त को यकीनी बनाना ही अव्वलीन तरजीह है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इजलास में वालिदैन और स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई। हैदराबाद के मलकागिरी इलाके में वाक़े जनप्रिया लीक व्यू अपार्टमेंट में एक कमसिन मुस्लिम लड़के को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। वीडियो में लड़का जज्बाती अंदाज में अपनी शनाख्त का दिफा करते हुए कहता है नजर आता है कि वो एक हिंदुस्तानी शहरी है और इसके दादा भारतीय फौज में सूबेदारी के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद बाद अफराद इसकी शहरियत पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह सारा वाक़या पुलिस अहलकार के मौजूदगी में पेश आया, जिस पर शहरियों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। इत्तलात के मुताबिक तनाज़ा एक रिहायशी फ्लैट में बगैर इत्तलात चंद अफराद के क़याम के मामले से शुरू हुआ। तहम बाद में सोसाइटी के ओहदेदार ने मुबैना तौर पर अपने रिमार्क्स पर माजरत कर ली और मामला मौके पर ही हल कर लिया गया। पुलिस ने दोनों फरीकीन की काउंसलिंग की जबकि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुख्तलिफ समाजी हलकों ने इस वाक़े को फ़िरक़ेवाराना ज़हनियत और नफ़रत अंगेज़ रवैयों की अक्कासी करार देते हुए कहा कि किसी शहरी को इसके मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तानी कहना न सिर्फ तौहीन आमेज़ है बल्कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और आइनी इक़दार के भी मुनाफी है।
عوام نے بھی تلنگانہ حکومت DGP اور ملکاجگری پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ فرقے وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والوں کو واضح پیغام دیا جا سکے۔ ایک منٹ ویڈیو لے، آپ کیسا بولتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیا پروف ہے؟ آپ پاکستان ہے، آپ ہیں تو پاکستان کا بول دیتے۔ میرے دادا انڈین آرمی میں تھے، آپ کو پتا ہے، صوبیدار تھے وہ۔ غلط ہے یہ، غلط ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ادھر بم لگانے کو آئے بیکاز یہ جو گھر ہے وہ پولیس اسٹیشن کا ہے۔ ہاں، یہ مسلمانوں کا ہے، پاکستانی ہے بیکاز آف وہ مسلمان۔ پاکستانی بول رہا میرے کو، وہ جا رہا سو وہ والا پاکستانی نہیں بول رہا۔ آئی ایم انڈین۔ پولیس کچھ نہیں کر رہی، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی، یہاں پہ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی، پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جدھر کم لوگ ہیں ادھر پولیس بھی دبانے کو دیکھ رہا۔ پولیس رائٹ ہے رانگ ہے، اس سے کچھ بھی انوالومنٹ نہیں پولیس کے سامنے کر رہے ہیں وہ سب، پولیس کے سامنے ایک لیڈی کے اوپر آ رہے، لیڈیز کے اوپر پولیس کے سامنے آ رہے ہم لوگ، لیڈیز کے اوپر آ رہے۔ ہاں۔ پاکستان بول رہا ہے۔ حیدرآباد میں ملاوٹی اور غیر محفوظ غذائی اشیاء کے خلاف جاری مہم کے تحت فاسٹ ٹیم اور فوڈ سیفٹی حکام نے چار مینار کے حسینی عالم پولیس حدود میں واقع ایک غیر قانونی فاسٹ فوڈ گودام پر اچانک چھاپا مار کر بڑے پیمانے پر کارروائی انجام دی۔ نیو لاڑ بازار پنچ محلے میں قائم الاکبر فاسٹ فوڈ کے معائنے کے دوران انکشاف ہوا کہ خوراک انتہائی غیر صحت بخش اور خطرناک ماحول میں تیار و ذخیرہ کی جا رہی تھی۔ حکام نے بغیر FSSAI لائسنس کے کاروبار، ممنوعہ کیمیکل رنگوں کے استعمال، بار بار استعمال شدہ مضر صحت تیل، ناقص صفائی اور معیار کی نگرانی کے فقدان جیسے سنگین خلاف ورزیاں پائیں۔ کارروائی کے دوران تقریباً 110 کلو گرام تیار شدہ فرائیڈ چکن، نوڈلز، استعمال شدہ کوکنگ آئل اور مصنوعی کیمیکل رنگ کے ضبط کیے گئے، جبکہ 2 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسی ملاوٹی اور غیر معیاری غذائیں فوڈ پوائزننگ، معدے کی بیماری، الرجی اور دیگر سنگین صحت کے مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ ملزمان کے خلاف فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹڈیز ایکٹ 2026 سمیت متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ సార్ ఆయన చేస్తున్నారు కదా ఇది కలిపి حیدرآباد کے KPHB علاقے میں واقع دی اسپائس کچن ریسٹورنٹ میں فوڈ سیفٹی حکام کی جانب سے کیے گئے اچانک معائنے کے دوران صفائی اور خوراک کے معیار سے متعلق متعدد سنگین خامیاں سامنے آئی ہیں۔ معائنے کے دوران کچن، فریزر اور اسٹوریج ایریاز میں کاکروچوں کی بھرمار، ذخیرہ شدہ غذائی اشیاء میں کیڑے، باسی کھانے کی موجودگی، بغیر لیبل اور تاریخ درج کیے خوراک کا ذخیرہ، کچے چکن کو غیر محفوظ انداز میں رکھنا اور سبزی و گوشت کی اشیاء کو ایک ساتھ ذخیرہ کرنا جیسے مسائل پائے گئے۔ حکام نے ناقص صفائی، خراب فرش اور غیر معیاری فوڈ اسٹوریج پر بھی شدید اعتراض کرتے ہوئے ریسٹورنٹ انتظامیہ کو فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت دی اور امپروومنٹ نوٹس جاری کرنے کا اعلان کیا۔ حکام نے واضح کیا کہ عوامی صحت سے سمجھوتہ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ حیدرآباد کے انجے نگر میں واقع معروف نوابس ریسٹورنٹ میں فوڈ سیفٹی حکام کے اچانک معائنے کے دوران متعدد سنگین حفظان صحت کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد انتظامیہ کو امپروومنٹ نوٹس جاری کی گئی ہیں۔ معائنے کے دوران فریزر میں باسی گوشت، چاول، نوڈلز اور چکن سے تیار شدہ اشیاء، ذخیرہ شدہ پانی اور چکن سے تیار شدہ اشیاء ذخیرہ شدہ پائی گئی، جبکہ غیر معیاری سطحوں پر گوشت کاٹنے، فوڈ پریپریشن ایریا میں پانی جمع ہونے، برتنوں کی صفائی کے لیے گرم پانی کی سہولت نہ ہونے اور کئی غذائی اشیاء پر لیبل اور تاریخ درج نہ ہونے جیسے مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ حکام نے فریزر میں بدبو، خون کے نشانات، غیر صحت بخش صفائی کے کپڑوں کے استعمال اور فوڈ ہینڈلز کے میڈیکل فٹنس ریکارڈ کی عدم دستیابی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔
अगरचे सब्जी और गोश्त की अशिया की अलहदा स्टोरेज और मसनूई रंगों के अदम इस्तेमाल जैसे मुस्बित पहलू भी देखने में आए हैं। हैदराबाद के कुकटपल्ली में वाक़े बेक मिक्स फूड्स ब्राउन बेर बेकरी यूनिट में फूड सेफ्टी हुक्काम के मुआयने के दौरान कई संगीन हिफ्ज़ान सेहत की खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद हुक्काम ने नमूने हासिल करके लेबोरेटरी जांच के लिए रवाना कर दिया है और शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। मुआयने के दौरान बेकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडे बगैर मुनासिब सफाई के ज़ख़ीरा शुदा पाए गए, जबकि अहाते में कॉकरोचों की मौजूदगी, खाम माल के स्टोर रूम में कबूतरों की आमदरफ्त, जंग आलूदा बेकिंग ट्रे और फिसलन ज़दा फर्श जैसे मसाइल सामने आए हैं। मज़ीद बना तैयार शुदा मसनूआत पर तैयारी और मियाद इस्तेमाल की तारीख दर्ज नहीं थी और सिर्फ बैच नंबर दर्ज किए गए थे, जो फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हैदराबाद के मदीना गुड़ा में वाक़े मशहूर कैफ़े बहार में फूड सेफ्टी हुक्काम के मुआयने के दौरान संगीन हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियाँ सामने आने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और इंतजामिया को फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत दी गई। किचन के करीब पानी जमा होने, पीने और खाने पकाने के पानी की जांच न होने, स्टाफ टॉयलेट का दरवाज़ा खुला होने, गैर मियारी सफाई, टूटी हुई फर्श, खुले नालियों और खुराकी फजूले की ढेरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हुक्काम ने यह भी पाया कि तैयार शुदा ग़िज़ाई अशिया बगैर लेबल और तारीख के महफूज की जा रही थी, जबकि फूड हैंडल्स की मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड भी दस्तियाब नहीं थे। फूड सेफ्टी टीम ने रेस्टोरेंट को सिर्फ 40% स्कोर देते हुए किचन की मुकम्मल सफाई और तमाम खामियों की इस्लाह तक ऑपरेशन मुअत्तल रखने की हिदायत दी। हुक्काम ने वादे किया कि अवामी सेहत से खिलवाड़ करने वाले इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फूड सेफ्टी क़वानीन पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए टोली चौकी के एक ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने अपने 11 साला बेटे को लग्जरी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार चलाने की इजाज़त दी थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में कमसिन बच्चा आउटर रिंग रोड ORR पर गाड़ी चलाता दिखाई दिया, जबकि इसका वालिद इसके साथ बैठा हुआ था। शिकायत मौसूल होने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस और ट्रैफिक हुक्काम ने फौरी तहकीकात करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया और वालिद के खिलाफ कम उम्र बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने के खतरनाक ड्राइविंग और कानूनी अहकाम की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन से और सरपरस्तों को सख्ती से खबरदार किया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी देना न सिर्फ कानूनन जुर्म है, बल्कि इनकी जान और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों की सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि रोड सेफ्टी को घर से ही यकीनी बनाया जाए और कम उम्र बच्चों को किसी भी सूरत ड्राइविंग की इजाज़त न दी जाए। संगारेड्डी के जहीराबाद में 208 एकड़ पर मुहित तिरुवेनी वनम इको पार्क का इफ्तिताह अंजाम देते हुए रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार और दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को सरसब्ज और माहौल दोस्त बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में 35.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 11 इको पार्क्स का वर्चुअल इफ्तिताह किया, जिनमें जहीराबाद का 5 करोड़ रुपए मालियत का तिरुवेनी वनम इको पार्क भी शामिल है। मुखर्रीन ने कहा कि NIMZ मंसूबे के तहत जहीराबाद तेजी से सनती मरकज में तब्दील हो रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, जबकि जदीद सहूलतों से आरास्ता ये इको पार्क माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, सयाहत के फ़रोग़ और आवाम को मेयारी तफरीह फराहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। వల్ల లాభాలు ఏందని వ్యాసం రాపించేది అవి వర్ణాతీతం అన్ని రకాలుగా మానవాళికి చెట్టు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం సత్యదాకా పనిస్తుంది పుట్టగానే అన్ని రకాలుగా ఫలాలు కానీ ఔషధాలు కానీ లాస్ట్కి వచ్చి మనం పోయిన తర్వాత లాస్ట్కు పోయిన రోజు కూడా మనకు సహకరిస్తుంది అంటే చెట్టు వల్ల ఎంత మరి మనకు కలిగే ప్రపంచం యావత్తు ఈ చెట్టు అనేది కూడా మన ఒక్కరికి దేరవారికే కాదు ప్రపంచం యావత్తు చెట్టు వల్లనే మనకు గాలి కానీ స్వచ్ఛమైన నీరు కానీ చాలామంది చెట్లను కూడా కొందరు ఉట్టిగానే కావాల్సుకొని వాళ్ళ సొంత గురించి నరుకుతూ ఉంటారు
రిస్క్ అనేది అది పెద్దగా మనందరికి కూడా నష్టపరుస్తుంది. మానవులు మనం మనుషులం ఎట్లనో చెట్టు కూడా మనతో పాటు జీవిస్తే మనందరికి లాభం. చెట్ల వల్లనే వర్షం కురుస్తుంది. అందుకే చాలామంది మరి మేధావులు తప్పకుండా ఇంటి దగ్గర చెట్లు పెంచుతూ ఉంటారు. आदिलाबाद जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने अवाम को खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्टें करने और हथियारों की नुमाइश के जरिए खौफ और हिरास फैलाने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। KRK कॉलोनी में मुनक़िदा खुसूसी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाते हुए 27 दो पहिए गाड़ियां, 26 ऑटो रिक्शा, एक कार और 77 शराब की बोतलें जब्त की। एसपी ने कहा कि नौजवान गांजा और दीगर मंशियात से दूर रहें, जबकि साइबर जराइम में जाली मुलाजिमतों के झांसों से भी मुहतात रहें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अमन व अमान के क़याम में पुलिस का ताउन करें, CCTV कैमरे नस्ब करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दें, ताकि ज़िले को जराइम से पाक, मंशियात से पाक बनाया जा सके। करेक्ट, देखो आधे लोग बोल रहे करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, यहाँ क्राइम कम करना, उसके लिए जो क्राइम कर रहे हैं उसको थोड़ा रोकना, उसको थोड़ा कंट्रोल करना। उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे आपके यहाँ पे 23 సస్పెక్ట్స్ है, 23 సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, 23 సస్పెక్ట్ షీట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి ఒక మంత్లో ఒకసారి పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు వస్తారు, ఎస్ఐ వస్తారు, బ్లూ కోల్ట్ 2 సార్లు వస్తారు, వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ ఒకసారి రావాలి అని నడుస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళు క్రైమ్ చేస్తే వాళ్ళ పేరు మనం రౌడీలో కన్వర్ట్ చేసి, రౌడీ షీట్లో కన్వర్ట్ చేసి ఇంకా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ఇబ్బంది పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాం. మన క్రైమ్ ఏమైనా ఎవరైనా అలవాటు పడినాయంటే పద్ధతి మార్చుకోవాలి. కాకుండా ఇక్కడ చాలామంది అది ఇవ్వను, ఆ 420 కేసు చేసి కోర్టులో డిపాజిట్ చేస్తాను. నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా మళ్ళీ పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకొని మళ్ళీ నంబర్ ప్లేట్ పెట్టిస్తారు. సరే అప్పుడు చూద్దాం, లేదు. ఈరోజు ఎన్ని దొరికినాయి ఆర్ఎస్ఐ గారు? 15. ఆ 15 వెహికల్స్లో 420 అంటే 420 చీటింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి కోర్టు పంపుతాము. మళ్ళీ కోర్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా చేస్తే ఇట్లా వాళ్ళకి 420 పెట్టి మళ్ళీ జైలు కూడా పంపుతాము. ఈసారి జైలు పంపము. నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా వెహికల్ కేఆర్కే నుంచి దొరికినాయి అంటే 100% నేను జైలు పంపుతాను. గాంజా దొరికింది అంబాదాస్, ఆ ఫోన్లో గాంజా అమ్ముతున్నారు. నా దగ్గర గాంజా ఉంది, తీసుకో. ఈరోజు మార్నింగ్ పట్టుకొని ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోతాం, కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం. సో అందువల్ల ఇట్లయినా మీ ఫోన్లో కూడా ఉండకూడదు. ఫోన్లో ఉంటే కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. మళ్ళీ యూరిన్ టెస్ట్ కిట్ ఉంది మన దగ్గర, అది కూడా వాడుతున్నాము. మొన్న మీ ఊరిలో హిందూ ముస్లిం ఒక చిన్న ఇష్యూ అయింది. बांसवाड़ा म्युनिसिपल हुदूद में SC कॉरपोरेशन 2025-26 स्कीम के तहत मौसूला दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें SC कॉरपोरेशन के ओहदेदार, नरेश, वेटरनरी ऑफिसर महेश, मुख्तलिफ बैंकों के मैनेजर्स और म्युनिसिपल कमिश्नर कोपू गंगाधर ने दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात का मुआयना किया। हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बांसवाड़ा टाउन के लिए मजबूरी तौर पर 6 यूनिट्स का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें 3 स्कूटर, एक 3 व्हीलर ऑटो, एक मवेशी यूनिट और एक सोलार पंप सीट शामिल हैं। इस स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें जांच के बाद आला हुकाम को रवाना किया जाएगा, जिसके बाद अहल मुस्तहिकीन को खर्च और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इजलास से मुतालिका महकमों के ओहदेदारान, बैंक नुमाइंदों और दरख्वास्त गुजार भी शरीक थे। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बारिश से गर्मी कम, शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात, मजीद बारिशों की पेशकयासी। हैदराबाद में टीसला की बाज़ाब्त एंट्री, हाईटेक सिटी में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कायम, जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारुफ, डिलीवरी व सर्विस सेंटर भी शुरू। मरकजी हुकूमत से हैदराबाद मेट्रो रेल के मरहले दुव्वम को मंजूरी देने की अपील, नीट इम्तिहान के लिए तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, रियासती काबीना का इजलास।
चीफ मिनिस्टर ने गुर्रमगुड़ा जंगलाती इलाके में वन महोत्सव का किया इफ्तिताह, किया खिताब। मूसी रिवर फ्रंट मंसूबा तेजी से आगे बढ़ेगा, तजाविजात के खिलाफ कार्रवाइयां रहेंगी जारी। हैदराबाद में फूड सेफ्टी हुक्काम की बड़ी कार्रवाई, कई रेस्टोरेंट्स व गोदामों पर छापे। कॉकरोचेस, बासी खुराक व गैर मियारी सफाई का इंकशाफ, भारी मकदार में अशिया जब्त, नोटिस जारी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।